It is run by Serafina, educate the poor and the most abandoned children. St. Clair's Convent School is one such institution that has grown from strength to strength in the past 25 years since its inception. The school's greatest accomplishment is to see its students ride the road of not only much-deserved success, but to see them exercise profound wisdom in their actions. As St. Clair's Convent School celebrates Amani, a milestone of significant achievement, it is simultaneously writing a history that marks it as a school that believes in the strength and capacity of every child and promises to nurture every inquisitive mind that walks its ground to the best of its ability. At the Honors D'Souza, Manageress Sister Arpita, Principal Sister Vinita, and our distinguished guests, Pandit Hari Prasad Mishra ji, Maulana Dr. Mirza Shafiq Hussain Shafaq, Mr. Abdul Nasir Nasir Sahab, Shri Bhiku Kamal Sheel, Kamla Didi, and Gyani Sukhdev Singh ji to kindle the lamp. May I also invite the students. Thank you everybody, stood and felt by everyone. To invoke the blessings of the Almighty, I would like to call upon our dance team to present a prayer dance.
सबके सहारे है, प्रभु ही सबके सहारे है। प्रभु की कौन मानेगा, प्रभु की कौन मानेगा, ये मनहार हमारे, ये मनहार हमारे। झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो रे, झूम झूम गाओ रे, झूम झूम गाओ रे। साथियों गाते चलो, महिमा गाते चलो, साथियों गाते चलो, महिमा गाते चलो। धन्य हो तन मन से, धन्य हो तन मन से, प्रभु ही सबके सहारे है, प्रभु ही सबके सहारे है। प्रभु की कौन मानेगा, प्रभु की कौन मानेगा, पालनहार हमारे, पालनहार हमारे। झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो रे, झूम झूम गाओ रे, झूम झूम गाओ रे। साथियों गाते चलो, महिमा गाते चलो, साथियों गाते चलो, महिमा गाते चलो। Reverend Sister Principal, Sister Vinita Joseph, to address the gathering. But the fruit of the sisters, caring parents, enthusiastic teachers, and fervent students. Welcome, I, Sister Vinita Joseph, the principal of St. Clare's Convent School, is delighted and honored to have you all here at Abani, that is, inter-religious prayer meeting on the occasion of the opening of Silver Jubilee year 2022 to 2023. I extend my gratitude to all for joining us today. We feel proud to have with us our honorable chief guest, Reverend Father Donald D'Souza. We are indeed grateful to our chief guest for graciously and readily accepting our invitation and adding charm to this morning of peace and harmony. Reverend Father Donald D'Souza is the parish priest of St. Joseph's Cathedral Church in Hazratganj. Our priest of Diocese of Lucknow, Father Donald D'Souza, besides being the manager of Cathedral Senior Secondary School, is the Chancellor and spokesperson of our diocese and also the manager of St. Francis College. Having done his PhD in theology in Rome, in Italy, he has been primarily involved in lecturing on liturgy and theology in various seminaries in the country, where they train young men to become priests. He has had vast and varied experience in life in the world of academics, culture, public relations, interreligious dialogue, education, and theology. Having been a professor in various seminaries for over 30 years, he is a friend and guide to many in the city of Lucknow, of all creeds and faith, who come to him for counseling and guidance. Hearty welcome, dear Father Donald D'Souza. I extend my warm welcome to Reverend Pandit Hari Prasad Mishra ji, Reverend Maulana Dr. Mirza Shafiq Hussain, who is not yet arrived, Mr. Abdul Nasir, who is yet to arrive,
Reverend Shri Bhikkhu Kamalshil, Reverend Sister Kamla, Reverend Gyani Sukhdev Ji, fathers, sisters, parents, teachers, and my beloved students. Before I begin, I would like to share few of my thoughts with you. We consider ourselves ordinary specks in the masses. Then comes Gandhi or Emerson, Mandela, Einstein or Buddha on the scene, believing that they are not same stuff as we are. I read a statement, it inspired me a lot. If the followers will lead, the leaders will follow. It means we are all leaders in shoes of followers, and we are followers in clothing of leaders. We all have character, strength, beauty, resilience, kindness, humanity, and perseverance of word to precede our change in this world. We usually look at peace with a point of view of bringing to an end a war. Peace is not only about end of conflicts or absence of war. Peace is about creating conditions of harmony in the way people live with each other. Peace is not only among people, but peace is among human beings and nature, as well as human beings and planet. Let us all inspire to eliminate differences among all. Peace and harmony are divine reflections of greater state of awareness beyond ego. Stillness of soul is found in deep calmness of human minds. In the letter of St. Peter in the Bible, it says, "Finally, all of you live in harmony with one another. Be sympathetic, love as brothers and sisters, be compassionate and humble." Psalm 133:1 relates, "How good and pleasant it is when brothers and sisters live together in unity and harmony." Once again, I welcome you all. Thank you. Logo of St. Mary's Convent School. Can you all have a thunderous round of applause? The Silver Jubilee logo. Thank you, Father. Thank you, Sister. Present the sapling to Gyani Sukhdev Singh Ji. Sikhism, which started in Punjab in the 16th century, has spread throughout. He is the head Granthi. आज हम जिस प्रेयर में शामिल हो रहे हैं उसका मैं भी एक हिस्सा बना हूँ और सबसे पहले मैं उस भगवान का, क्योंकि धर्म सब एक है, रास्ते अलग अलग है, प्रभु एक है, उसे गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो। और गुरु ग्रंथ साहब जो सर्व सांझी गुरबाणी है उसके बीच एक बहुत कीमती बोल है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जागो पिटिया कौन भले को बंदे। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो आज मैं जो आप सबके सामने अपने जो विचार पेश कर रहा हूँ, धर्मनिरपेक्ष जो आज
मनुष्यता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम अपने देश में देखते हैं, विदेशों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। इस देश में धर्मनिरपेक्ष, किसी से कोई वैर नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। किसी की जाति बड़ी नहीं है, किसी की जाति छोटी नहीं है। कर्म काम आएंगे, जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारे साथ जाएंगे। गुरबाणी का एक वचन है, पही प्राप्त मानक देहुरिया, गोविंद मिलन की एक तेरी बरिया। अलग बात है कि चंगी एजुकेशन प्राप्त करके इस समाज में किसी रुतबे पे पहुंचना, पर जो मुख्य मार्ग है, जो धार्मिक ग्रंथों का उपदेश है, वो यही है कि जहां हमने जिंदगी जीने के लिए अपने काम करने हैं, वहां साथ साथ उस भगवान अपने धर्म में रह के, धर्म के विच पक्के रह के, मजबूत रह के, दृढ़ इरादे से उस भगवान की पूजा भी करनी, उसका नाम भी लेना है और अच्छे कर्म करने सबसे अच्छे। जे नहीं चढ़ती रही उस मजार पे हजारों चादरें, बाहर एक गरीब सर्दी से मर गया। ये नहीं कि कब्र पे पत्थर पे कपड़ा चढ़ाते जाओ, बाहर कोई सर्दी से कांपता रहे और मर जाए, ऐसा नहीं। बाहर कोई भूखा पेट, कोई गरीब, कोई भिखारी आपको नजर आता है जिसको अन्न की जरूरत है, उसको कोई दे ना, तो दूसरी जगह पे हम कौओं को डालते रहे, वो भी ठीक नहीं। समाज में ऐसे परोपकार के काम करें जिससे भगवान भी प्रसन्न हो, क्योंकि जो इन हाथों से नेक कर्म किए जाएंगे वो ही हमारा परलोक में हमारा साथ देंगे। जहाँ अगर बुरा काम करेंगे, गुरबाणी का एक वचन है, जैसा बीजे सो लुणे कर्मा संद राखे। बाबा नानक जी का वचन है, आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मी आप हो जाओ। जिस तरह का बीज बोया है वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। ये नहीं बीजे भिख मंगे अमृत वेखे न्याओ। ऐसा नहीं होगा कि बीजा तो जहर है, तो फल हम इच्छा रखते हैं कि हमें अमृत प्राप्त हो। नहीं, एक कपास का सूत्र किसी ने काटा है तो उसके क्या बनेगा? सूती कपड़ा बनेगा, कॉटन का बनेगा, रेशम का नहीं बनेगा। अगर किसी किसान ने अपने खेत में किक्कर का बीज बोया है तो उसे अंगूर के गुच्छे नहीं लगेंगे, उसे कंडे लगेंगे। ऐसे जैसा कर्म हम इस संसार में करके जाएंगे वैसा ही फल हमें भगवान के घर में मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा प्राप्त होगा। दिता लइए अपना अण दिता किश हाथ ना आवे। दीवार पे गेंद मारो, जितनी तेजी से मारोगे दुगनी तेजी से आपकी तरफ आएगी। अच्छा कर्म एक करोगे तो दुगने कर्म अच्छे, उनका लाभ आपकी तरफ आएगा। एक कर्म बुरा करोगे तो दुगने कर्म वो आपकी तरफ आएंगे। अगर आज आप सुखी हो तो जरूर आपने किसी को सुख दिया है, अगर आप दुखी हो तो जरूर आपने किसी को दुखी किया है। ये तो एक हाथ से देना तो एक हाथ से लेना। इस कर्मों की भूमि में जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। बस एक ही संदेश दे के मैं समाप्ति करता हूँ कि भाई इस समाज में हम आए हैं, अच्छा कर्म करके जाइए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी इंसान है और सभी के खून का रंग लाल है। जब खून का रंग लाल है तो भगवान ने एक ही रास्ते से भेजा, एक ही तरह से आए हैं। तो कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। कबीर साहब ने कहा अगर कोई ऊंची जाति का कहे कि मैं ऊंची जाति का हूं तो भगवान ने तेरे लिए को और रास्ता तैयार किया होता। सारी दुनिया की पैदाइश जैसे हुई है तेरी भी ऐसे ही हुई है। इसलिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। नेक कर्म करो, समाज में अच्छी विद्या प्राप्त करो, शिक्षण लिए आओ, सिखाने के लिए जाओ। यही से मेरे जो वचन है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय भगवान और सभी का धन्यवाद। सबको हम एक बार अंतरात्मा से नमन करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। प्रवचन करते समय सभा मध्य जो होए ताको पहुँचे पै लगी जो जहिलायक हो।
सबको वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और सबको स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नः हरिषो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वायः पृथिव्यां वायवो पायो दिव्यन्तारिक्षे पायोधाः पायस्वती प्रदेशाः शान्तो मह्यं मा विष्णोरमसि विष्णोः यज्ञेतो विष्णोः शिवरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे यज्ञर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वारुणो देवता द्योः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शाम शान्तिरेरि सुशान्ति भवतु हरिः ओम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शान्तिः 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 Thank you, Pandit Ji, for your inspiring and enriching message. May I now invite the school choir to lead us in prayer. Sa
तकरीब के इनाकात पर कि बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का उन्होंने इनाकात किया है। और अभी मैंने जो बच्चों से प्रेयर सुनी और जो नज़्म उन्होंने पढ़ी, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई दिलकश थी। और फिर आपने जिस तरह से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों को यकजा किया है और जिस तरह से मुख्तलिफ़ मसालिक और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग यहाँ मौजूद हैं, लीडर्स मौजूद हैं, तो उससे ये साबित हो रहा है कि हम सब एक गुलदस्ता हैं और मुख्तलिफ़ फूल खिले हुए हैं। किसी का नाम मुस्लिम है, किसी का नाम हिंदू है, किसी का नाम क्रिश्चियन है। ये अलग अलग मज़हब हैं मगर सब फूल हैं जो एक गुलदस्ते में हैं। तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि एक खूबसूरत गुलदस्ता आपने आज यहाँ अपने यहाँ पेश किया है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का। दूसरी बात ये कि आज जैसा कि यहाँ की इंतज़ामिया के इल्म में होगा, हमारे शिया धर्मगुरु आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला जो इंटरनेशनल फैमिली लीडर हैं, उन्हें यहाँ आना था आज, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है और वो बीमार हैं, जिसकी वजह से मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि उनकी सेहत के लिए भी दुआ करें कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं और इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे आपके दरमियान तशरीफ़ लाएं। दूसरी चीज़, मैंने जिस हदीस को सरनामा कलाम करार दिया है वो प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद के जुमले हैं, सेंटेंस हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि दीन क्या है, मज़हब क्या है, रिलीजस क्या है, सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। यानी मज़हब मोहब्बत का नाम है, रिलीजस मोहब्बत का नाम है, धर्म मोहब्बत का नाम है। अब अगर इसके बरखिलाफ़ कोई आतंकवाद, कोई दहशत और कोई वहशत फैलाता हुआ नज़र आए, इसका मतलब वो दीन नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो मज़हब नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है मगर मज़हब नहीं है, दीन नहीं है, धर्म नहीं है, रिलीजस नहीं है। क्योंकि रिलीजस तो, मज़हब तो कहते ही मोहब्बत को है। वहाँ मोहब्बत के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। वहाँ मोहब्बत के अलावा नफ़रतों की गुंजाइश ही नहीं है, सिर्फ मोहब्बतें। वहाँ ज़मीन होती है तो मोहब्बत की, आसमान होता है तो मोहब्बत का, फ़िज़ाएँ होती हैं तो मोहब्बत की। जहाँ हर तरफ जिनकी पवित्रता, जिनकी तहारत का जिक्र किया है, वो दो महिलाएं हैं। एक का नाम है हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जो हज़रत ईसा मसीह की माँ है, और दूसरी महिला का नाम है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो हज़रत इमाम हुसैन की माँ है। इन दोनों की पवित्रता, इन दोनों की पाकीज़गी कुरान मजीद में दो अलग अलग सूरों में बयान की गई है। सूरह मरियम में कहा गया, सूरह आले इमरान में कहा गया कि या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के व तहरा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम, हमने तुम्हें सारी कायनात की औरतों में से मुंतखब किया है, चुना है, और तुम्हें सारी दुनिया की औरतों का सरदार बनाया है, और हमने तुम्हें पाकीज़ा बनाया है, पवित्र बनाया है। तो कुरान ने हज़रत मरियम की पाकीज़गी की गवाही दी और उनकी पवित्रता में के बारे में बताते हुए साथ में ये भी बताया कि वो सारी दुनिया की औरतों की सरदार बनकर आई थी। दूसरी तरफ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बारे में कहा कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। यानी फ़ातिमा भी बहुत पवित्र और बहुत पाकीज़ा खातून हैं, और इनको ईश्वर ने, इनको दोनों माएँ, ये कायनात की अजीम तरीन माएँ हैं, और इन दोनों माओं के बेटे चाहे ईसा मसीह हों और चाहे इमाम हुसैन। हज़रत ईसा मसीह जो अम्र के पैगंबर थे, वो सूली पे लटक गए, लेकिन उसमें सबसे ख़ास रीज़न यही है कि वो मोहब्बत के पैगंबर थे, वो अमन के पैगंबर थे। इसी तरह से इमाम हुसैन को करबला के मैदान में क्यों कत्ल किया गया, इसके बहुत से रीज़न्स हैं, लेकिन जब आप असली रीज़न तक जाएंगे तो इसीलिए उन्हें कत्ल किया गया क्योंकि मोहब्बत के पैगंबर थे और मोहब्बत का पैगाम देने वाले थे, अमन का पैगाम देने वाले थे, अमन के पैगंबर थे। उन्हीं ने तो कहा था कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। क्यों कहा था?
ये उस वक्त भी 1400 साल पहले भी सारी दुनिया में अमन, सुलह, आश्ती और मोहब्बत की पहचान था। तो एक बार जोरदार तालियां हिंदुस्तान के लिए। कौन सी चीज की? जिसका ताल्लुक नेकी से है, जिसका ताल्लुक खैर से है, जिसका ताल्लुक सच्चाई से है। और जहालत हर बुराई की जड़ है, जहालत हर फितने की जड़ है। जितनी भी दहशतगर्दियां हैं, जितने भी झगड़े हैं, जितने भी फितने हैं, जितने भी फसाद हैं, उनकी जड़ क्या है? जहालत है, इलिटरेसी है। तो मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा कि आप अभी तालिब इल्म हैं, अभी स्टूडेंट हैं, कल को आप हमारे देश का भविष्य होंगे, हमारे देश का मुस्तकबिल होंगे। तो जहाँ जाइए इल्म का चिराग रोशन कीजिए, एजुकेशन के दीप जलाइए, हर जगह इल्म की रोशनी फैलाइए। और ये वादा कीजिए आज इस स्कूल की सिल्वर जुबली के मौके पर हमारे साथ 3 प्रॉब्लम्स हैं: जहालत, गुर्बत, बेरोजगारी। तो हम आज इस स्कूल में और इस मुबारक मौके पर ये अहद करते हैं, मैं तमाम स्टूडेंट से ये बात कर रहा हूँ और टीचर्स से भी, कि हम आज ये अहद करें कि हम अपने तौर पर जहाँ तक मुमकिन होगा जहालत, गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा करने की कोशिश करेंगे और हम देश को तरक्की के रास्तों पर लेके जाएंगे। क्योंकि जब देश की तरक्की होगी तो हमारी तरक्की भी होगी, और जब हमारी तरक्की होगी तो देश की तरक्की भी होगी। और बस आखिरी बात और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ, कभी गुरूर में मुब्तला ना होइएगा कि बस अब हमें सब कुछ मिल गया। सब कुछ नहीं होता, बहुत बड़ा है आसमान और बहुत ऊंचा है आसमान। हमेशा उड़ने की ख्वाहिश रखिएगा, जितना मिले उसे कम ना समझिएगा और ज़्यादा हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कभी नाकाम हो जाइएगा तो मायूस ना होइएगा, नाउम्मीद ना होइएगा, कोशिश करते रहिएगा कि आज नहीं तो कल हमें कामयाबी मिलेगी। चलिए कि चलना ही सबूते ज़िंदगानी है, चलिए कि चलना ही सबूते ज़िंदगानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम भरे जग में हम शांति का दूत बने। प्रेम भरे जग में हम शांति का दूत बने। प्रेम भरे जग में हम शांति का दूत बने। प्रेम भरे जग में हम शांति का दूत बने। आतंक के प्रहार को मिटाएंगे हम धरती से। प्रेम भरे जग में हम शांति का दूत बने। घर घर को अपना बने, सबका साथी बने। हिंदी से सागर तक शांति का पैगाम बने। घर घर को अपना बने, सबका साथी बने। हिंदी से सागर तक शांति का पैगाम बने। दिलों जहाँ पर मोहित बनकर शांति का दूत बने। प्रेम भरे जग में हम शांति का दूत बने।
आज मुझे आप लोगों के बीच में इस स्कूल में मुझे आकर बहुत खुशी हो रही है। आज इसकी स्थापना को 25 वर्ष हो चुके हैं। सिल्वर जुबली सेरेमनी मनाई जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व में शांति का संदेश देने के लिए इस स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने सभी रिलीजन्स के जो प्रमुख लोग हैं उनको आमंत्रित किया है कि वे अपने अपने अनुसार, अपने रीति के नियम के अनुसार विश्व में शांति स्थापित करने के लिए प्रार्थना करें। स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी को धन्यवाद दे रहा हूँ, उसका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी हम जिस गाड़ी में बैठ के आ रहे थे उसके बाद ऑफिस में जब बैठे हुए थे तो फादर बोल रहे थे कि जिस समय इसकी स्थापना हुई उसमें पूर्व में विद्यार्थी रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे होंगे। आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ और इस स्कूल से भी यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे भी मेरी यही इच्छा है कि आप लोग ऐसे स्टूडेंट तैयार करें जो केवल और केवल विश्व में शांति स्थापित करने के लिए काम करें, चाहे वे कहीं पर हों, केवल शांति की बात करें। क्योंकि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी को सुख चाहिए, सभी सुख से रहना पसंद करते हैं। किसी को दुख की जरूरत नहीं होती, कोई दुख नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। तो फिर मुझे क्या हक है कि मैं किसी दूसरे को तकलीफ दूं। आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने इस संसार के प्राणी मात्र के लिए अपने मुख से बोला। उससे पहले मैं जो हमारे सामने उपस्थित अतिथि हैं उनका नाम लेना चाहूँगा। फादर डोनाल्ड डी डिसूजा, पंडित हरि प्रसाद मिश्रा जी, मौलाना डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन जी, अब्दुल नासिर जी, श्रीमती बहन कमला जी और ज्ञानी सुखदेव सिंह जी, आप सभी लोग अपने अपने रिलीजन के, अपने अपने मतांतर के मानने वाले बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं। आपके ऊपर आज का जो समय है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं हमसे कुछ कमी रह रही है, जिसकी वजह से ऐसे लोग सिर उठा रहे हैं जो इस देश को अशांत कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। हम लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा है
सब्बे सत्ता सुखी होंतो सब्बे होंतो चखे मिलो सब्बे भद्राणि पसंतो माँ कंचि दुखमा गमा। अर्थात भगवान क्या है? भगवान बुद्ध करुणा के सागर हैं। भगवान बुद्ध दया की बात नहीं करते, वे करुणा की बात करते हैं। प्राणी मात्र पर करुणा की बात करते हैं। दया और करुणा में बहुत अंतर है। वे करुणा के सागर हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार के प्राणी जो पैदा हो चुके हैं, जो पैदा होने वाले हैं, जो दिखाई देते हैं, जो दिखाई नहीं देते, वे सभी सुख से रहें। किसी को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं हो। इसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हमको अपने अंदर करुणा स्थापित करनी है तो हमको इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए भगवान बुद्ध ने 5 बातें बताई हैं जिनको पंचशील के नाम से जाना जाता है। मैं अपनी पाली भाषा में तो नहीं बोलूँगा, हिंदी में ही बताऊँगा। पहला है, मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। दूसरा है, मैं बिना दिए किसी की वस्तु को न लेने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, करता हूँ। तीसरा, मैं व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, करता हूँ। चौथा, मैं झूठ नहीं बोलने की, चुगली नहीं करने की, इधर की बात उधर नहीं कहने की, उधर की बात इधर नहीं कहने की, व्यर्थ की बातें नहीं करने की, कर्कश वाणी नहीं बोलने की और अफवाहें नहीं फैलाने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, करता हूँ। 5वां सील है, मैं कच्ची शराब, पक्की शराब, गांजा, अफीम, भांग इत्यादि जितने भी नशीले मादक पदार्थ होते हैं उनसे दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, करता हूँ। ये भगवान बुद्ध ने एक मानक दिया है कि अगर हम इसको कर लेते हैं, ईमानदारी से अपने अंदर इसको उतार लेते हैं, तो फिर क्या है, हमारे अंदर से केवल और केवल करुणा निकलेगी और कुछ नहीं। भगवान बुद्ध ने किसी को धर्म कहा है, इसको उन्होंने सदाचार भी कहा है। भगवान कहते हैं कि जितनी भी स्मेल्स हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हैं या नेचुरल हैं, वो तो उसी दिशा में बहती हैं जिस दिशा में हवा बहती है। लेकिन ये जो सील है, धर्म है, सदाचार है, इसकी सुगंध हवा के विपरीत दिशाओं में भी बहती है। कहाँ तक चली जाए इसके लिए कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को इनका पालन करना चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं भी रहता हो, किसी भी इस पृथ्वी के किसी भी टुकड़े में, किसी भी भूभाग में रहता हो, जापान, चाइना, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी रहता हो, इंडिया कहीं भी रहता हो, इनका सबके ऊपर समान असर पड़ता है। कोई चाहे अपने को हिंदू कहे, कोई मुसलमान कहे, कोई सिख कहे, कोई ईसाई कहे, कोई बौद्ध कहे, कोई जैन कहे, कुछ भी कहे, इन 5 बातों का सबके ऊपर समान असर पड़ता है। अगर कोई इनको मानेगा उसका कल्याण होगा, अगर नहीं मानेगा उसकी हानि निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। ऐसी इस संसार में ऐसी कोई पावर नहीं है जो आपने जो कर्म किया है उस कर्म के फल से बचा सके, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। कोई सत्ता ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, केवल आप खुद ही ऐसे हैं जो अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल हमको अच्छा अवश्य मिलेगा। अगर हम बुरा कोई भी कर्म करेंगे हमको उसका फल बुरा ही मिलेगा और अवश्य मिलेगा। कर्म हम 3 तरह से करते हैं। एक, मन से, पहले हम किसी के प्रति बुरे विचार मन में उत्पन्न करते हैं, फिर
उनको वाणी से बोलते हैं, फिर उसको शरीर से करते हैं। इसलिए तीनों का सहयोग इसमें होता है। मैं अपनी बात को अधिक लंबी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझसे और भी वक्ता हैं, कुछ और भी प्रोग्राम हैं। संक्षेप में आप लोगों के लिए, सभी के लिए, इस संसार के, इस जगत के सभी प्राणियों के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। सभी लोग सुखी रहें, दीर्घायु हों, निरोगी रहें, किसी को भी किसी भी तरह का कोई दुख ना हो, किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। साधु साधु साधु। मंगल मंगल। मैं नहीं आ पा रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ थी, लेकिन हुक्म हुआ तो मैं आ गया हूँ। सिर्फ 2 बात करना है इस्लाम के मुताबिक। मोहम्मद साहब की 2 बातें हैं। नंबर 1, अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना हराम है। नंबर दूसरा ये है कि अगर आपका पड़ोसी आपसे खुश नहीं है और दिन भर आप नमाज़ पढ़ें और रात भर दिन में रोज़ा रखें, रात में नमाज़ पढ़ें, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर पड़ोसी आपसे परेशान है, जितने लोग, एक बार और सुन लीजिए कि आप दिन भर रोज़ा रखें, रात भर नमाज़ पढ़ें, लेकिन आप अपने पड़ोसी को परेशान कर रहे हैं, तो आप जन्नत में नहीं जा पाएंगे। इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं चाहिए। इतनी नमाज़ पढ़ें, इतना रोज़ा रखें, अगर आप पड़ोसी को परेशान कर रहे हैं तो आप जन्नत में नहीं जा पाएंगे। दूसरा, अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना हराम है आपको। और इसकी मिसाल अभी कोरोना में मैंने देखा है कि करीब 70% मुसलमानों ने इस पर अमल किया है। कोरोना के दौरान मुसलमानों ने बहुत बड़ी तादाद में कोरोना के जो लोग थे उनकी मदद की। दूसरी एक अपील और थी कि 15 तारीख को, अक्टूबर को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की यौम पैदाइश है। यूएनओ ने उसको विश्व छात्र दिवस के रूप में डिक्लेयर किया है। 15 तारीख को क्लार्क कवक में बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है नेशनल लेवल का, हम लोग कर रहे हैं। और रिफाइन क्लब जो है, जिसमें 100 साल पहले गांधी जी तशरीफ लाए थे, वहाँ पे हम लोग 100 पौधे लगाएंगे रिफाइन क्लब गोला में। और क्लार्क कवक में ये प्रोग्राम होगा। आप है कि 5 बच्चे साइंस में टॉपर हों, उनको हम ऑनर्स के लिए वहाँ बुला रहे हैं, जो साइंस में उन्होंने टॉप किया उनके लिए। और दूसरा ये आपकी जो थीम है वो ये है कि हर बच्चा जो दस्तखत नहीं कर पाता है, पूरी दुनिया में हम लोग अपील कर रहे हैं। विश्व छात्र दिवस है 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को कलाम साहब के जन्मदिन को यूएनओ ने विश्व छात्र दिवस मनाया है। तो एक बच्चा अपने पड़ोसियों को जो दस्तखत नहीं कर पाता, उसको दस्तखत करना सिखाएगा। पूरी दुनिया में छात्रों से अपनी अपील की जा रही है, छात्र जिसमें आप करें। यूएनओ की 7 लैंग्वेज है, चाहे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, पंजाबी, किसी ज़ुबान में आप बच्चों को उर्दू में दस्तखत करना सिखा दीजिए, बुढ़े को, बच्चों को, लड़के को। ये सारे स्टूडेंट्स करेंगे भाई? हाँ तो भैया आप लोग करेंगे? अपने पड़ोसी जो आपका रिक्शा वाला है, आपका ड्राइवर है, दस्तखत नहीं कर पाता, उसको दस्तखत करना सिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के फादर साहब और इस स्कूल की प्रिंसिपल मैम जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, और जो भी अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी को दिल से प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हमारे प्यारे प्यारे जो भाई बहन दिखाई दे रहे हैं हमको, और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम सभी को दिल से नमस्कार करते हैं, ओम शांति करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हम आए हैं आज यहाँ पर। हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में, कि आज हमें भी ये सुनहरा मौका मिला है आप सभी के बीच में आने का। इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, बहुत सारी बातें हम यहाँ पर सुन रहे हैं जो हमारे आगे जीवन में काम आने वाली हैं। आज इस स्कूल का 25 साल पूरा हो रहा है, जिसको हम सिल्वर जुबली के रूप में बड़े प्यार से, बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक है पीस एंड हार्मनी। तो हमारे अंदर पीस कैसे आएगी? पीस देने वाला हमें कौन है? शांति का सागर स्वयं परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर कहते हैं। आज इस समाज में, दुनिया में इसी की ज़रूरत है।
आज हमें सब कुछ मिल सकता है, समाज से, दुनिया से, दुकान पे, मॉल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर हमें सुख चाहिए होता है, शांति चाहिए होता है, तो हमें कहीं और नहीं मिलता है, किसी और से नहीं मिलता है। हम सीधा किसकी ओर जाते हैं, कहाँ पे हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं? वह है स्वयं परमपिता परमात्मा, जो हम आत्माओं का पिता है। और आत्मा के अंदर आकर के हम अपने मूल गुण को भूल चुके हैं, जो हमारे वास्तविक गुण है शांति। बल कोई कितना भी अशांति फैलाता है, बचाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे भी क्या चाहिए होती है? शांति चाहिए होती है। थोड़ी देर के बाद वो खुद ही कहेगा बस हमें शांति में रहने दो। तो वास्तविक हमारा मूल गुण यही है, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, जो हर कोई को चाहिए होता है। हर कोई इसी का आग प्यासा है और भूखा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें पहले तो स्वयं के अंदर जो आत्मा है उसके अंदर हमें जो शांति अपने आप में भरनी होगी। हम चाहते तो हैं अच्छा कर्म करें, हर कोई हमें कहता है अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, लेकिन अच्छे कर्म करने की पावर हमारे अंदर कहाँ से आएगी? तो अच्छा कर्म सिखलाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा, जिसे हम गॉड, प्रभु, ईश्वर और अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं। हम खुद को भूल गए, खुदा को भूल गए, आज इसीलिए दुनिया में दुख और अशांति है। हम कहते तो आए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन आज क्या हम दिल से इसे स्वीकार करते हैं? हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि क्या हम इसे सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं? अगर कोई छोटी जाति धर्म का हमारे समक्ष आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, तो हम क्या सोचने लगते हैं? हम उच्च खुल गए हैं, ये जाति धर्म हमने ही बनाए हैं। वैसे तो हम सब एक ही पिता परमात्मा की, ईश्वर की संतान हैं, और हम सब कहते हैं परमात्मा ने हमें इस धरा पर भेजा है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। यूँ तो हर कोई कर्म करता है, एक जानवर भी करता है और एक मानव भी करता है, लेकिन एक जानवर में, मानव में जमीन आसमान का अंतर है। हमें विवेक मिला है, हमें बुद्धि मिली है कि हमें श्रेष्ठ कर्म कैसे करने, हमें सबके लिए अच्छा कैसे सोचना है। वो हमें स्वयं राजयोग मेडिटेशन के द्वारा सिखाया जाता है कि हमें एक पिता परमात्मा की संतान अगर अपने को समझें, तो आज आपस में जो भेदभाव है, रंग रूप है, ये सारा भेद मिट जाएगा। हम एक पिता परमात्मा की संतान, स्वयं प्रभु की संतान समझेंगे, तो आपस में वो प्यार, वो स्नेह, जैसे अपने घर में एक ही माता पिता के 4 बच्चे होते, चारों में आपस में कितना प्यार होता है, ऐसे ही सारी दुनिया हमारा एक परिवार है। सब कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सब पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। तो अगर हम अपने मन में ये बिठा लें, अपनी सोच में ये बिठा लें, तो आज सचमुच हम इस दुनिया से इस भेद को मिटा देंगे और हमारे जीवन में भी शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा। तो हम अपने मूल गुण को समझेंगे, जानेंगे कि आत्मा के मूल गुण हैं ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। अगर हम इन स्वरूपों को जान लें और अपने को वैसा हम समझने लगे, तो सचमुच ये दुनिया बदल जाएगी। हर घर में शांति होगी, हर समाज में शांति होगी, इस देश में शांति होगी, और ये धरा स्वर्ग सा बन जाएगा, जिसे हम अभी क्या समझते हैं, ये कलयुग है। एक कलयुग के बाद सतयुग अर्थात सत्य का युग आने वाला है इस धरा पर, जिसके हम सब ही जिम्मेवार हैं। सबसे पहले हम अपनी सोच को बदलेंगे। हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। आज हम सभी आपसे अनुरोध करते हैं सबसे कि हम कितनी बातों को हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा आज के समय में मीडिया है, जो सबके हाथ में मोबाइल होता है। हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम वो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए बच्चों से आज हमारी यही शुभभावना रहेगी कि जो हम बनना चाहते हैं वही हम सोचें, वही हम देखें, वही हम बोलें और वही हम करें। बाकी सब हमारे लिए
बेकार की चीज़ें हैं उन पे हम अपना ध्यान न दें। अगर हम अपने जीवन को सफल, सुख, शांतिमय बनाना चाहते हैं, अपने देश को हम अच्छाई की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हमें खुद ही गौर करना होगा। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। इसी बात के साथ We have the blessings, blessings of the Lord. Shower on us the blessings, blessings of the Lord. God the Father, bless us, bless us. Jesus Savior, bless us, bless us. Holy Spirit.
happy to be here, standing in front of you, and I have to fill in two roles. The original chief guest was Father Naresh Lobo. Unfortunately, his elder brother passed away, so he had to rush home for his funeral. And I'm also here to give you the message of the faith of Christianity and how it is relevant today. In your diary, it says St. Clare's Convent School was established in the year 1998. I remember 25 years ago, I used to come here and see the buildings in construction. Not everything was ready. And that time in this area, Thakurganj and beyond, one of the worries of those who pioneered this school and those of us who knew about the school was this: will it get enough students? But today, if there was another St. Clare school, it would also help me to clap to the management. You must have noticed after the sisters' names, they have a few initials: CF, M, CFMSS. That F stands for Francis, Franciscan as an adjective of Francis, because their charism and their spirituality comes from that saint, Saint Francis of Assisi, who lived in the 13th century, and St. Clare was his sister. Both of them started this Francis for peace. Now, every day you recite a prayer, it can happen as students that you recite it so fast, you forget what was recited. It becomes so by heart. The memory that you keep finish the prayer fast. Before I recite that, I would like to recite the prayer once again for you all and for our beloved guests, respected guests. I want to give another message. Some years ago, the church in India had an educational policy. The church runs thousands of schools from north to south, east to west. So people who ran these schools started asking themselves, why are we running these schools? What is the purpose of running these schools? And after a lot of deliberation and discussion, they created the 5 C's of education. C, ABC, 5 C's of education, and that is what every school in the country, the Christian school, all the so-called missionary schools, are supposed to pass on to the students. You all, my dear students. The whole purpose of the education is to prepare men and women with these 5 C's. What are these 5 C's? Competence. Men and women of competence. Secondly, men and women of caliber. Thirdly, men and women of commitment. Fourthly, men and women of conviction. And fifthly, and most importantly, men and women of conscience. So remember, dear students, if you are passing out from this school, St. Clare School, for the rest of your lives, to say that I was a student, I studied in St. Clare School, you should inherit and live these 5 C's: competence, caliber, commitment, conviction, and conscience. If you have these 5 C's, you have achieved what the school is meant to achieve, what education is supposed to achieve.
We all know that when our country became independent in 1947, we were just 16% literate in this country. But today we are more than 75% literate. But there are another 25% yet to be educated. Some time ago, I'm the manager of 2 big schools in the city. Once in a way, we meet the teachers and the support staff. There was a discussion of salaries. The salaries have to be increased. Salaries are not enough. It's normal. Women wish that we should get more salaries. So I placed before them what I had read about 5 days before that meeting. I told the teachers, and this also is a message for our teachers, I told the teachers in that school, if you consider employees of the school, then surely you will concentrate only on salaries. But there is something more that you do. You are not merely employees. Please don't consider yourselves employees, but consider yourselves stakeholders in educating the country. Stakeholders in educating the country. We are all together educating the country till our country becomes 100% literate. So this is my message to the teachers. Please consider yourselves stakeholders in educating the country. Also the parents, those who are here, you are also equally stakeholders. The management runs the schools, yes, but together with you, without your cooperation, as stakeholders, in Hindi में शायद एक शब्द है अपनापन. ये स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, अपनापन होना है. ये माता पिताओं का स्कूल भी है, टीचरों का स्कूल भी है, सब लोगों का स्कूल है, हमारा स्कूल है. सिर्फ आपको ऐसे नहीं कहना है कि हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं. हमारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं जिसका नाम है सेंट क्लेयर स्कूल. So thank you very much for this invitation. It was wonderful to be here, and I congratulate all the young ladies who came on the stage in dancing and singing, and all of you who encouraged them with your claps. Finally, I place it before you once again for your meditative listening, that same prayer which was created more than 800 years ago, the prayer which you recite every day, which I am going to place before you. And it was written 800 years ago and very, very relevant in the world of today, in the India of today. Lord, make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there is doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there is despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, let me bring only light. And where there is sadness, let me bring joy. O Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand others, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that Felicitate our chief guests, Reverend Father Donata and Principal.
Reverend Dr. Mirza Shafi. A huge round of applause, audience. Gyani Sukhdev Singh ji had a busy schedule today, so he left a little early. Didi has brought something for us, so a huge round of applause. उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरी तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, पूरी तन मन तेरे लिए। धन्यवाद सर्वदा, धन्यवाद सर्वदा, तेरी स्तुति तहे दिल से गाएंगे सदा। समर्पण तुझे
अशांति के हर पल में स्वास्थ्य मिले अस्वास्थ्य में अशांति के हर पल में हर खुशी हर गम तूने साथ दिया तेरी आभार इसलिए गाएंगे सदा धन्यवाद सर्वदा धन्यवाद सर्वदा पूरे तन मन तेरे लिए धन्यवाद सर्वदा तेरी स्तुति तन दिल से गाएंगे सदा Excellent performance. India is a secular country and allows all forms of beliefs equal status before the law. God's love flows constantly, unbroken by time or place or circumstances. It always grows and expands. Good morning to one and all present over here. I, Mrs. Archana, on behalf of St. Clare's Convent School, Lucknow, and the entire fraternity of the institution, thank all of you present over here. My special thanks to our chief guest, Reverend Father Donald D'Souza, who has been working hard in connecting young minds to strive success and achievement. We are grateful to you, Father, for accepting our invitation and honoring us by being the chief guest of today's event, Amani. Thank you, Father. Now I would like to thank our guests of honor, our eloquent speakers present over here. Reverend Father Donald D'Souza once again, Reverend Pandit Hari Prasad Misra ji, Reverend Gyani Sukhdev Singh ji, Reverend Sister Kamla ji, Reverend Dr. Mirza Shafiq Hussain Shapa, Reverend Mr. Abdul Nasir Shapa, Reverend Bhikkhu Kamal Shil ji, Reverend Sisters and Fathers, thank you dignitaries for accepting our invitation, for being a part of today's event of peace and harmony and making it a grand success. Thank you, dear pace setters. I would also like to thank our dear Sister Principal, Reverend Sister Vinita Joseph, for igniting the spirit of secularism in the minds of everybody through Amani. Thank you, Sister. My heartfelt gratitude to our manageress, Sister Arpita, our Vice Principal, Sister Navina, Sister Savita, who all have taken great pain in monitoring everything all by themselves and lending a helping hand wherever needed. Thank you, dear sisters. I would also like to give credit to our dear parents and all invited guests who have taken out some time from their busy schedule for being a part of this wonderful event for invoking God's blessings. Thank you, dear guests, and all my dear parents. Your support means really a lot. I also appreciate our honorable teachers and participants without whose rigorous effort this event could never have been possible. Thank you, teachers and my lovely students. I also appreciate the hard work of decorative team who came out with such bright and unique ideas on such an auspicious theme. Thank you, everybody. My endless thanks to our supportive staff who had been standing on their toes and had been following every instruction to their best level. Thank you, everybody. At last, I would like to thank each one of you present here from the bottom of my heart for making this event a grandeur. As it is rightly said by the famous poet and novelist William Shakespeare, the quality of mercy is twice blessed.
It blesseth him that gives and him that takes. Thank you everybody, your presence meant a lot. I am much obliged to have all of you here and thank you once again everybody. Thank you.